Good morning, class. So we'll continue miscellaneous exercise, chapter number 10, question number 1. Let's see the question. What is being said? Find the value of k. So we have to find the value of k for which the line given is parallel to x-axis. So the line given is k minus 3 times x minus 4 minus k square times y plus k square minus 7k plus 6. This is your equation of line. This is what your equation of line given. Now they are saying find the value of k if this is parallel to x-axis. If it is parallel to x-axis, means we are having a line parallel to x-axis. Just see, this is x-axis, this is y-axis. Line parallel to x-axis. X-axis के parallel. मतलब ये point क्या होगा? 0, a. The equation क्या होगी? Y is equal to a will be the equation of this line. Yeah. तो y is equal to a को हम कैसे लिख सकते हैं? Y minus a equal to a. Now we know that two lines are parallel. अगर दो lines parallel होती हैं, आप पहले बताया x plus by plus a1 एक line है और x plus by plus this यहाँ पे है. Yeah. So when two lines are parallel, their x and y coefficients are the same. ये x और y coefficient क्या होते हैं? सेम होते हैं अगर दो लाइंस पैरेलल हैं. सिर्फ आपका जो कांस्टेंट c1 c2 है ये डिफरेंट होता है. तो बस इसका देखो इसकी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 0 टाइम्स x प्लस 1 टाइम्स y. तो ये क्या है? जो x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है तो हम कंपेयर कर सकते हैं. दैट इज a minus b is equal to 0. This implies a is equal to 0. ये आपको पता है फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट आपको बोला है कि पैरेलल टू y axis. y axis के पैरेलल. इसी में हम ड्रॉ कर सकते हैं कि आपका फर्स्ट एलिमेंट ड्रॉ करना है एलिमेंट y1 के पैरेलल. y1 के पैरेलल में मतलब क्या होगा? x is equal to minus a या x is equal to a हो जाएगा. एक पॉइंट हम मान लेते हैं या b ले लो. ये ले लो minus b, 0 या b, 0. x is equal to minus b या b कुछ भी मान लो आप. मैं अगर इस पॉइंट को यहाँ ले लेती हूँ तो y एक्सिस के पैरेलल होता है. तो ये पॉइंट क्या होता है? x is equal to यहाँ क्या होता है? ये लाइन आती है b क्योंकि ये पॉइंट हमें मिलेगा 0 माइनस b कॉमा 0 था. ये सॉरी ये पॉइंट हो गया b कॉमा. ठीक है. अपन पॉजिटिव भी लेते हैं तो अपनी इक्वेशन इसकी इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है x is equal to b है ना. b जस्ट तो ये x is equal to ये तो भी एंटर मतलब सेकंड पार्ट x is equal to b का तो इक्वेशन क्या होगी? x is equal to b को लिखते हैं x minus b is equal to b. दैट मींस 0 times y plus 1 times x minus b is equal to 0. अब इसमें क्या है आपका y का कोएफिशिएंट 0. यहाँ क्या है? y का कोएफिशिएंट ये दैट मींस हम कंपेयर करें तो हमें पता है कि और b की कोएफिशिएंट क्या होती है? सेम होती है. तो हम लिख सकते हैं माइनस टाइम्स 4 minus a square is equal to 0. This implies a square is equal to 4. This implies a is equal to plus minus a की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस 2 होगी. क्लियर? a की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस. थर्ड पार्ट अगर देखें थर्ड पार्ट हो रहा है कि लाइन इज पासिंग थ्रू द रूट. ओरिजिन से पास कर रही है मतलब पॉइंट है 0 0. अगर ओरिजिन से पास कर रही है तो x की वैल्यू क्या होगी? 0. y की वैल्यू क्या होगी? 0. तो this multiplied by 0 minus this multiplied by 0. ये पूरी क्वांटिटी को 0 हो गई. Then we are left with what? This quantity only. So we can put the value x is equal to 0, y is equal to 0 in equation 1 and get the answer as a square minus 7a plus 6. Now you can factorize and get the answer. Then again factorization a square minus 6a minus k plus 6 is equal to 0. This implies a common a minus 6 minus 1 comma a minus 6 is equal to 0. So from there you got the value. Next आपकी क्या वैल्यू है? a is equal to 1 और 6. a की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? यहाँ तो 1 आ रही है, यहाँ 6 आ रही है. ठीक है. a की वैल्यू क्या आ रही है? 1 और 6. Then come to the next question, question number 2. So your question number 2 is the scene
दे आर सेइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड टी, हमें थीटा और टी की वैल्यू निकालनी है। इफ द इक्वेशन x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू t इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन गिवन। ओके, सो we have to find theta and t if x cos theta plus y sin theta is equal to t, equation of line in normal form। अब आपका सेम इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म में दे रखा है सेम इक्वेशन। अगर आपका नॉर्मल फॉर्म ये है, जनरल फॉर्म में दे रखा है √3x plus y plus 2 is equal to 0। Now if you remember in the last class I told you, last to last class what we have discussed, the value of t cos theta sin theta, t की वैल्यू क्या होती है plus minus c upon under root of a square plus b square, where the general equation of line क्या होती है ax plus by plus c is equal to 0 है ना। जनरल इक्वेशन ऑफ line क्या लेते हैं ax plus by plus c is equal to 0। तो ये t की वैल्यू होती है cos theta की वैल्यू क्या होती है plus minus a upon under root of a square plus b square। सेम वे sin theta की वैल्यू क्या होती है plus minus b upon under root of a square plus b square। तो sin theta की वैल्यू क्लियर। सो यू नो द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या है हम समझ सकते हैं √3, b की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है, हमें b की वैल्यू तो 1 है और c की वैल्यू क्या है, a b c की वैल्यू पता है तो हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं cos थीटा sin थीटा। अब हमें आपको पता है मैंने क्या बोला था, ये जो डिस्टेंस है ये तो हमेशा हम क्या लेंगे, दिस डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब इसकी हम कौन सी क्वांटिटी लेंगे, sin थीटा की पॉजिटिव लेंगे वैल्यू या नेगेटिव। दिस आल्सो आई हैव टोल्ड यू, देन अगेन आई एम टेलिंग यू द कैलकुलेशन पार्ट कैन डू इट बाय योरसेल्फ। जस्ट सी द लाइन, दिस इज योर x axis, y axis, दिस इज योर origin, ठीक है ये origin। अब आप इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को हम इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आना हमेशा, तो उससे आपको स्लोप का आइडिया लग जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं y -3x माइनस लिख सकते हैं ना। तो ये स्लोप क्या हो गया इसका, स्लोप विल बी इक्वल टू -2 एंड y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा इसका, y इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू -2। मतलब ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये y एक्सिस को कहां टच कर रही है -2 है ना। तो ये कोई पॉइंट होगा 0.2 यहां से गुजर रही है और जो उसका स्लोप है, स्लोप क्या है नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या है कि वो लाइन x एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। तो लाइन किस तरह की होगी, इस तरह की लाइन होगी। अब आप देखो x एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है ना। हमें क्या देखना है, x एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, नॉर्मल फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म मतलब क्या होता है, ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से ओरिजिन से हमें अगर लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो वो परपेंडिकुलर ये एंगल होता है यहाँ पे थीटा है ना। ये वाला थीटा नहीं है, ये cos थीटा में थीटा की वैल्यू क्या होती है, जो x एक्सिस से ये बना रही है ये वाला एंगल होता है ना। ये एंगल आप दूसरा कोई ले लो, फाई ले लो, जो x एक्सिस से बना रही है तो स्लोप के लिए काम आता है। पर जो परपेंडिकुलर x एक्सिस से बना रही थी उसको हमने क्या किया हुआ है, हमने ये थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। नाउ जस्ट सी थीटा इज लाइंग वेयर इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा इज लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम कौन सी वैल्यूज लेंगे cos की, थर्ड क्वाड्रेंट में sin cos both are negative। In third quadrant sin is also negative, cos is also negative, so we'll consider the negative values of cos theta also, sin theta also, and we'll get the answer। And the value of theta should also be lying in the third quadrant, ये ध्यान रखना है क्योंकि you know that cos theta और sin theta की वैल्यूज क्या होती है, रिपीट होती है आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। तो आप निकाल सकते हैं वैल्यूज। The next is question number 3, only you have to just put the values and get the calculation done। Now just see question number 3, what they are saying in question number 3, find the equation of the lines which cut off the intercept on the axis whose sum and product are 1 and -6। तो वो बोला है कि find the equation of line which cut off the intercept
let the intercept cut by the line is 0 comma a, and your y axis it will be 0, sorry, a comma 0 and this will be 0 comma, है ना। यही होता है x एक्सिस पे क्या होता है, x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा, y कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट 0, है ना। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन तो हमें पता है, वो बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच कट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ द एक्सिस whose sum and product are, तो हमारा क्या है, हमें ऐसे निकालने की इन दोनों का सम क्या हो, a प्लस b। ये गलत बनाया मैंने तो जरिए सिर्फ आपके इंटरसेक्ट फॉर्म के लिए बनाया है। तो a प्लस b क्या करना है हमने 1 एंड a इंटू b क्या करना है माइनस, a इंटू b क्या करना है माइनस। तो हमें क्या निकालना है, एक्चुअली a और b की वैल्यू निकालनी है। a और b की वैल्यू निकल जाएगी तो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगा, ठीक है। तो a माइनस b निकालना है, तो a का पता है, a माइनस b का पता है, कर सकते हैं। तो you know that in 10th also you must have studied the side a plus b whole square is equal to a minus b whole square plus 4ab. If you don't remember, you can open up the bracket and you will see that this quantity will be a plus b whole square. Just see, a square plus b square minus 2ab plus 4ab. a square plus b square minus 2ab plus 4ab क्या होगा, minus 2ab plus 4ab क्या होगा, plus 2ab हो जाएगा। यही तो है a plus b whole square का फॉर्मूला है ना। Then just put the value and get the value of a minus b. यहाँ से अब हमें 1 is equal to a minus b whole square plus 4ab। 4ab की वैल्यू होगी minus 2। यहाँ आ जाएगा तो a minus b whole square is equal to 25. This implies a minus b equal to plus minus 5। हो जाएगी ना, a minus b की दो वैल्यूज आएंगी। अब एक बार आप प्लस 5 के साथ ले लो, एक बार आप a minus b is equal to plus 5 और a plus b is equal to 1 और दूसरी ले लो आप a minus b is equal to minus 5 and a plus b is equal to 1। दो से आपको अलग अलग a और b की वैल्यू मिलेगी। फ्रॉम हियर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ a is equal to 2a is equal to 6 आएगा, a is equal to 3 and b is equal to what, minus 2। same way ये आपका a सेट आ गया। now from here you will get 2a is equal to minus 4, a is equal to minus 2, b is equal to क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या हो जाएगी, एक फिर से बनेगी इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो x अपॉन a 3 प्लस y अपॉन माइनस 2 इक्वल टू 1। ये पहली इक्वेशन बनी। l1 l2 क्या हो जाएगा, x अपॉन माइनस 2 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 1। आप चाहेंगे तो ऐसे ही लिख लीजिए, यहाँ चेंज कर दीजिए जनरल इक्वेशन ऑफ, ठीक है। यहाँ पे देखो इक्वेशन ऑफ लाइन में जनरल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करो, ठीक है। Is that clear? Then come to question number 4. What is your question number 4? Question number 4 is what are the points on the y-axis whose distance from the line is 4। तो आपको एक इक्वेशन दे रखी है लाइन में इंटरसेप्ट फॉर्म में, x इंटरसेप्ट आपका 3 है, ये पॉइंट हो गया 3, 0, ये पॉइंट हो गया y इंटरसेप्ट इज given as 4। दिस इज योर लाइन। दे आर आस्किंग द परपेंडिकुलर origin y axis, this is x। now they are saying what are the points on y axis whose distance from the line। हमें एक पॉइंट लेना है y axis पे, एक पॉइंट लेना है a b c ले लिया, whose distance from this line is, तो ये पॉइंट क्या हो गया, हमने ले लिया 0, a पॉइंट ले सकते हैं 0, a b y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। तो वो बोल रहा है ये जो पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 4 यूनिट्स डिस्टेंस। तो हमें पता है अगर इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, x अपॉन गिवन ही है x अपॉन 3 प्लस y बाय 4 इज इक्वल टू 1। इसको लिख सकते हैं 4x जनरल फॉर्म में 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, है ना। अब मैं 12 को ले आऊं तो माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस b प्लस c का फॉर्म हो गया। now you just see the distance of a point from a line, distance of a point from a line l, ये इक्वेशन ऑफ l है, क्या है इक्वेशन ऑफ l है। तो l की इक्वेशन पता है, ये पॉइंट पता है, ये डिस्टेंस, ये पॉइंट हमें नहीं पता, ये निकालना है डिस्टेंस पता है। तो हमें फार्मूला पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू ax1 plus by1
प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस। अब a की वैल्यू क्या है, यहाँ से पता लगा लेंगे a is 4, b is equal to 3 and c is equal to -1। x1 y1 क्या है आपका, x1 y1 क्या है आपका 0, है ना, ये पॉइंट y एक्सिस पे है, x कोऑर्डिनेट तो हो गया 0 और y कोऑर्डिनेट है। अब हमें डिस्टेंस b पता है, b is equal to कितना ले रखा है, ये सारी चीजें आपको पता है, जस्ट पुट इट इन द फार्मूला, यू विल गेट ओनली वन वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल होगा आपका यहाँ पे, क्या होगा b क्या है 3 टाइम्स a, बाकी ये तो 0, ये क्या हो गया x1 0 है तो ये क्वांटिटी 0, बस वैल्यू पुट करो एंड गेट द आंसर। क्लियर? द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। Now question number 5, what they are saying? They are saying the find perpendicular distance from the origin to the line joining the points. अगर अपन को perpendicular distance from the line joining the points, find the perpendicular distance from the origin. Origin से perpendicular distance निकालना है from the line joining the points. दो points आपको देखते हैं cos theta, sin theta, and next point is cos phi sin phi। ये दो पॉइंट्स हो गए। अब यहाँ ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p निकालना है ना, व्हाट वी हैव टू फाइंड इज p। या सो एनी अदर इक्वेशन which will find equation of line L will be equation of line L, क्या हो जाएगा, अगर if you know 2 points on the line you can find the equation of line by 2 points of y minus y1 मैंने sin थीटा ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 is equal to, अब x2 y2 और y2 क्या है sin phi minus sin theta upon x2 minus x2 is cos phi minus cos theta into x minus x1। x1 कितना है cos, now this cos multiply over the bracket, yeah, when we will open the bracket what we will get y times cos phi minus cos theta, yeah, minus sin theta times y के साथ भी ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, फिर sin थीटा के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, cos phi minus cos theta। This was just for your explanation, now I am drawing the figure। This will be equal to, now open up the bracket of x times x by inverse multiplication sin phi minus sin theta, then minus times, yeah, I will get minus cos theta times both minus cos theta times sin theta sin phi minus sin theta, ठीक है क्लियर। अब इसको ऐड करके मैंने तो y times cos phi minus cos theta minus x times डिवाइड पॉइंट को मैंने minus x times sin phi minus sin theta, ठीक है हो गया। अब इसको क्या होगा प्लस कर सकते हो, क्योंकि आपके यहाँ अगर आपको प्लस चाहिए तो क्या करेंगे हम sin थीटा माइनस sin हो जाएगा। सेम वे इसको भी आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन लेट इट लाइक दिस, क्योंकि आपका थीटा पहले है फाई बाद में, बेटर है आप चेंज करते हो माइनस फाई माइनस cos थीटा माइनस cos इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू, अब इसको ओपन अप कर दो, इसको हम यहाँ ओपन करेंगे क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा sin phi minus minus plus cos theta sin theta। अब इस वाली टर्म को मैं उधर ले जाऊंगी तो ये माइनस साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इक्वल टू उधर तो क्या हो जाएगा sin theta cos phi sin theta cos phi, अब ये प्लस था यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस जाएगा तो sin minus sin theta cos theta, है ना। अब आप ये देखो ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो ये क्या फॉर्मूला बन रहा है sin थीटा cos phi minus cos थीटा sin phi, इसका फॉर्मूला बन रहा है sin a cos b minus cos a sin b, sin a minus b sin थीटा minus phi, ये क्या आ गया sin 10 से भाग आपका
sin थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू ये ले लेंगे अपन x sin थीटा माइनस sin फाइव, sin थीटा माइनस sin फाइव माइनस y टाइम्स cos थीटा माइनस cos फाइव। अब मैं इस वाली क्वांटिटी को इधर ले आऊंगी, ये माइनस इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू इधर लाएंगे तो प्लस माइनस हो जाता है, ठीक। अब आप देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन में नॉर्मल फॉर्म हो गई ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहां से आप a की वैल्यू क्या होगी sin थीटा माइनस sin फाइव, b की वैल्यू होगी माइनस ऑफ cos थीटा माइनस cos फाइव, c की वैल्यू होगी माइनस ऑफ sin थीटा माइनस। अब वो बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ओरिजिन से आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा p will be equal to ax1 plus by1 plus c upon under root of a square plus क्या करना है हमें, अपॉन ये नीचे का अपॉन लिख ही रहा है, अपॉन अंडर रूट का फार्मूला लगाया है ना। इस फार्मूले की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, ओरिजिन से निकालना है तो पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट है 0 0, तो आपका x1 0 है, y1 की क्या है 0। आपकी पॉइंट्स x1 y1 की वैल्यू क्या है, x1 y1 x1 क्या है 0, दोनों पॉइंट्स आपके क्या आ गए 0 आ गए। तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ये क्वांटिटी 0 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 मल्टीप्लाइड बाय, तो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा c क्या है माइनस sin ऑफ थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब इसको आप ओपन अप करेंगे तो वैल्यू विल ओपन अप, तो क्या होगा sin थीटा, ये आपको विजिबल नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा sin थीटा माइनस sin फाइव होल स्क्वायर माइनस cos थीटा माइनस cos फाइव होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करेंगे क्या होगा sin स्क्वायर हो जाएगा, sin स्क्वायर का माइनस 2 sin थीटा sin फाइव, इसमें भी आप ओपन अप करेंगे ब्रैकेट, तो ये मिलेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर फाइव माइनस 2 cos थीटा cos फाइव, क्लियर। ये आएगा, अब sin स्क्वायर थीटा प्लस sin cos स्क्वायर थीटा एक 2 आ जाएगा, cos sin स्क्वायर फाइव प्लस cos स्क्वायर फाइव अगेन बचेगा क्या माइनस 2 sin थीटा sin फाइव, यहाँ से माइनस 2 cos थीटा cos फाइव, अगेन यही फॉर्मूला बनाएंगे sin थीटा sin फाइव cos थीटा cos फाइव, इसका फॉर्मूला बनेगा वो देखेंगे। सो सिर्फ जस्ट इसको आपको वैल्यू को सिंपलीफाई करना है, ट्राई टू डू इट अदरवाइज आई विल डू इट, अगर नहीं आया सिर्फ आपको क्या करना है वैल्यू को डालकर सिंपलीफाई करना है। मैं इसलिए नहीं करूंगी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, सिर्फ सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगेंगे, जैसे मैंने यहाँ यूज किया ना, ये वाला फॉर्मूला यूज किया sin थीटा माइनस फाइव cos a sin b माइनस sin a cos b, तो ये आपको फॉर्मूले सारे याद हो जाएंगे, फॉर्मूले याद है तो इजीली हो जाएगा, सिर्फ सिंपलीफिकेशन करना है, ठीक है। Yes, then come to question number 6. So what is your question number 6? Let's see. So question number 6, what it is? Find the equation of line parallel to y-axis. हमें एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो कि पैरेलल है y-axis को. Line is parallel. Now they are saying and drawn through the point of intersection of the line, और इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलती है, इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से ये निकलती है, क्लियर। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, जस्ट सी, अगर हमारी एक लाइन क्या है यहाँ पे दी हुई है x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन निकालना है 3x प्लस y इज इक्वल टू 0। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ दीस टू लाइंस, ये फर्स्ट है सेकंड है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, y की वैल्यू निकाल सकते हैं -3x फ्रॉम फर्स्ट from y is minus 3x from second है, और इसको डाल सकते हैं, यहाँ क्या रहेगा x minus 7 times minus 3x plus 5 is equal to 0. This implies what? x minus 21x plus 5 is equal to 0. तो ये क्या होगा 22 minus 22x is equal to minus 5. x की वैल्यू क्या होगी 5 by 10. x की वैल्यू क्या होगी 5 by 20.
तो इन दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है, दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है 5/22। x की वैल्यू क्या होगी 5/, और हमें क्या बोला है कि ये जो लाइन हमें निकालनी है ये भी इस पॉइंट से पास कर रही है, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से ये लाइन भी निकलती है। ठीक है, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, हमें एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब y एक्सिस के पैरेलल है, तो इस लाइन पे हर जगह x की वैल्यू क्या होगी -5/22। x की वैल्यू क्या होगी हर जगह क्या होगी, ये +20 का होगा ना, +20 इज इक्वल टू -5 x इज इक्वल टू -5। तो यहाँ नहीं आएगी ये वैल्यू नहीं इधर आएगी, हमने तो एक जनरल पॉइंट लिया था ये y एक्सिस है ये x एक्सिस है, ये पॉइंट आ गया हमारा -5/22 पॉइंट टू बी देयर। या तो वो कह रहा है कि जो दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है, अगर मैंने दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है तो इस लाइन से भी वो पास कर रही है, अब वो कहीं से भी पास करे उस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन जो कि y एक्सिस के पैरेलल है उसकी इक्वेशन क्या होती है x इज इक्वल टू a, मैंने पहले लिख दिया था, x की वैल्यू क्या है यही तो है इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी x इज इक्वल टू -5/20। okay, clear, is that clear everyone? Then come to question number 7. They are saying find the equation of a line drawn perpendicular to the line through the point where it meets the y-axis. ठीक है, क्वेश्चन समझना है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, अपने आप कर लेना। एक बार मैं हिंट दे देती हूँ आपको क्या बोला गया है उसमें। वो बोल रहा है आपको कि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, गिवन लाइन दे रखी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द y एक्सिस। तो आप फिगर देख लो, उसके बाद यू कैन डू इट बाय क्वेश्चन नंबर 7। जस्ट सी क्या बोला गया है आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर। अभी आपको इंटरसेक्ट फॉर्म में लाइन दे रखी है, ये ओरिजिन है x एक्सिस y एक्सिस, ये पॉइंट हो गया आपका 4,0, ये पॉइंट हो गया 0, ऐसी कोई लाइन है। अब वो बोल रहा है वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर को इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो परपेंडिकुलर है थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द y एक्सिस। परपेंडिकुलर कहां होना चाहिए, ये पॉइंट 0 से 0 तो हमें यहाँ से लाइन निकालनी है जो कि वेयर इट मीट्स द y एक्सिस है ना, कहाँ मिल रहा है y एक्सिस की लाइन, हमें एक पॉइंट पता है और ये भी पता है कि ये जो है ये लाइन और ये लाइन क्या है परपेंडिकुलर, दिख रही है आपको परपेंडिकुलर, आप बोलोगे परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, मान के चलना है, अपन एग्जैक्ट फिगर तो बना नहीं सकते ना, वी कैन नॉट मेक द एग्जैक्ट फिगर, ये इस तरीके से होगी लाइन, इस तरीके से होगी परपेंडिकुलर, तो लगती है परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,6। तो अभी मैं पता है 0,6 से पास कर दी है और परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ ये लाइन का स्लोप और ये लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगी, y इंटरसेप्ट पता है हमें, स्लोप पता है y इक्वल टू mx प्लस c से निकालो या डायरेक्ट ही हमारा y इंटरसेप्ट क्या है, इस लाइन का y इंटरसेप्ट क्या है, कहां इंटरसेप्ट करेगी y एक्सिस पे 6 पे ना, y इज इक्वल टू क्या होगा mx प्लस c, स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप जो होगा, इसका स्लोप क्या है, अपन ले लेते हैं x/4 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1, तो 6x प्लस 4y 6 4 22 माइनस 24 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या होगा, वैसे यहीं से निकल जाएगा ना आपका स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस a/b माइनस 6/b क्या हो जाएगा माइनस 2 3 6 माइनस 3/2, तो ये तो स्लोप l का होगा, l1 का होगा, l2 का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ये l1 का स्लोप, l2 का स्लोप हो जाएगा आपका 2/3, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी y is equal to इक्वेशन ऑफ लाइन की y is equal to m क्या है, m is our 2/3 into x plus c is
इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 3y is equal to 2x plus 18. This will be your equation of the required line. Clear? This was your question number 7. Okay class, it's time, we'll continue tomorrow. Thank you class.